Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss a very important application of Gauss's theorem in electrostatics, which is to find electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet for class 12 physics chapter 1 electric charges and fields. इस टॉपिक को मैंने 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड में 3 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम के साथ एक ही वीडियो में डिस्कस किया था, जिसे यूट्यूब में अपलोड किया जा चुका है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस को अलग से डिस्कस किया जा रहा है। अदर 2 एप्लीकेशंस को भी बाद में अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस important application of Gauss's theorem. Suppose an infinite plane sheet of charge which is uniformly distributed, having surface charge density sigma. Let AB be the infinite plane sheet of charge. We have to find electric field intensity at any point, say point P, separated by distance r from the plane sheet of infinite plane sheet of charge. Let a Gaussian surface ABCD in form of an imaginary cylinder in both sides of the infinite plane sheet of charge equidistance from each side, that is Gaussian surface of length equal to distance of the point P and other point Q on both sides of the infinite plane sheet of charge. Let S be the surface area of each end caps of the Gaussian surface, that is imaginary cylinder. So electric charge enclosed inside the Gaussian surface ABCD is sigma equals to surface charge density multiplied by S. S is the surface area of the Gaussian surface at its every section. Each section of the Gaussian surface surface area is S, capital S, and sigma is the surface charge density, because surface charge density sigma is equal to charge per unit area Q upon S. Therefore Q is equal to sigma multiplied by S. इस डायग्राम में फिगर 1 में हमने सपोज किया है ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इस इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज से आर डिस्टेंस पर, इसके किसी एक साइड में आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, जबकि आर डिस्टेंस पर ही इसके दूसरे साइड में, मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के दूसरे साइड में दूसरा पॉइंट कौन है, क्यू है, उतना ही डिस्टेंस पर जितना डिस्टेंस
पी पॉइंट का है प्लेन शीट, इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के एक साइड में, उतना ही डिस्टेंस पर दूसरे साइड, मतलब इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के दूसरे साइड में उतना ही डिस्टेंस पर पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट कौन है? दूसरा पॉइंट क्यू है। इसलिए दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इक्वल होगा। लेट कैपिटल ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट points P and Q of the end caps, circular end caps of the Gaussian surface, which is directed perpendicular to the plane sheet in outward direction. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर गॉसियन सरफेस ABCD एक इमेजनरी सिलेंडर है, और चूंकि दोनों इंड कैप्स, सर्कुलर इंड कैप्स गॉसियन सरफेस का, दोनों सर्कुलर इंड कैप्स AB एंड CD का डिस्टेंस इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज AB से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड Q ऑन बोथ साइड्स ऑफ द infinite plane sheet of charge will be same, that is capital E. Suppose it is capital E, which is directed outward normal to the plane sheet, surface of the plane sheet of charge, and along the axis of the Gaussian surface, which is an imaginary cylinder ABCD. Electric field intensity इस infinite plane sheet of charge के surface के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, जबकि इमेजनरी गॉसियन सरफेस, इमेजनरी सिलेंडर, जो कि इमेजनरी सिलेंडर है ABCD, उसके एक्सिस के अलोंग है। अब चूंकि गॉसियन सरफेस का हमने सरफेस एरिया किसी भी सेक्शन पर A सपोज किया है, लेट S बी द सरफेस एरिया एट ईच सेक्शन ऑफ द गॉसियन सरफेस ABCD, सो चार्ज इनक्लोज्ड inside the Gaussian surface of the inside the infinite plane sheet of charge is Q is equal to sigma multiplied by S. इस इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के अंदर, चूँकि गॉसियन सरफेस इस इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज से होकर के ही पास करता है, तो इन्फानाइट प्लेन शीट के अंदर गॉसियन सरफेस का किसी पार्ट, किसी सेक्शन के अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा वह कितना होगा? सिग्मा इजकल टू Q इजकल टू सिग्मा इंटू S, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है Q अपॉन S, चार्ज पर यूनिट एरिया, देयरफॉर Q इजकल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई S. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस Q इजकल टू सिग्मा इंटू S. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिc flux passing through a closed surface is equal to surface integral of electric field around the closed surface, that is surface integral E vector dot ds vector, that is integral over surface S, the entire surface is E vector dot ds vector. So we can divide this Gaussian surface image, which is an imaginary cylinder ABCD, into three parts: two circular end caps of the Gaussian surface and the cylindrical portion AD, that is three parts. So using the formula of electric flux, total electric flux passing through, linked with, total electric flux linked with the Gaussian surface, that is imaginary cylinder ABCD, across the, which is taken across the infinite plane sheet of charge through points P and Q, equidistant from the infinite plane sheet of charge, that is both sides of the infinite plane sheet of charge. Gaussian surface ABCD is phi E, that is total electric flux, will be equal to phi, थ्री पार्ट्स में हमने गॉसियन सरफेस को डिवाइड किया, ए बी सर्कुलर इसका इंड कैप है,
फर्स्ट इन कैप इस गॉसियन सरफेस का, सेकेंड इन कैप है अदर साइड में सी डी थ्रो पॉइंट क्यू एंड पॉइंट पी से होकर के इंड कैप ए बी है, सर्कुलर इंड कैप गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सिलेंडर का, दैट इज फाई ए बी, मतलब ए बी से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, 3 पार्ट्स में गॉसियन सरफेस को डिवाइड किया, तो फाई ए बी प्लस फाई, अब सिलिंड्रिकल पार्ट है इस गॉसियन सरफेस का ए डी लेंथ का, तो फाई ए डी प्लस फाई सी डी विच इज द सेकेंड सर्कुलर इंड कैप ऑफ द गॉसियन सरफेस थ्रो another point q which is at the same distance r from the other side of the infinite plane sheet of charge. So phi in last electric flux through the second circular end cap CD of the Gaussian surface. So total electric flux through the Gaussian surface ABCD is phi AB circular end से होकर के कैप से होकर के प्लस सिंडिकल पार्ट AD से होकर के फ्लक्स phi AD प्लस सेकेंड सर्कुलर इंड कैप सी डी से होकर गॉसियन सरफेस का सेकेंड सर्कुलर इंड कैप सी डी से होकर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई सी डी, और फाई ए बी इजकल टू इंटीग्रल, कि सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द इंटायर क्लोज सरफेस, सो इट इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर द सरफेस over the entire surface. So E vector dot ds vector means E ds cos theta, and at AB at in the circular end cap AB circular end cap AB at point P, electric field is, since electric field is directed normal to the perpendicular to the plane sheet of charge in the outward direction, and let a small area ds, here is a small area ds of total surface out of total surface area S, एक स्मॉल पार्ट एरिया का ले लिया जाए टोटल सरफेस एरिया एस का, तो एक स्मॉल डी एस स्मॉल एरिया एलिमेंट है, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा, मतलब इस पर नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा डी एस के नॉर्मल, तो क्या होगा उसका डायरेक्शन उसके अलोंग, मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन के अलोंग एक एरिया वेक्टर होगा डी एस वेक्टर होगा, जो कि डी एस के परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब दैट इज अलोंग ई वेक्टर. सो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा पी पॉइंट पर, और दोनों अदर सर्कुलर इंड कैप सी डी, यहाँ पर भी क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के सरफेस या प्लेन के परपेंडिकुलर है आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो और यहाँ पर भी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया जाए गॉसियन सरफेस का, टोटल सरफेस एरिया एस का एक छोटा सा एरिया डी एस, तो इस पर भी नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा परपेंडिकुलर, तो अभी इस डी एस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, डी एस का सेक्शन जो है चूँकि वर्टिकल है, तो इस पर जो एरिया इस पर नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जो कि डी एस वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया वेक्टर, तो उसका भी डायरेक्शन ई वेक्टर के एलोंग होगा, तो यहाँ पर भी थीटा इजकल टू 0 हो जाएगा, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इजकल टू 0 डिग्री, और यहाँ पर भी सर्कुलर इंड कैप ए बी के पी पॉइंट पर भी पी पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एरिया सरफेस एरिया डी एस लिया गया है गॉसियन सरफेस का, तो उस पर भी जो एरिया वेक्टर होगा उसके नॉर्मल डी एस के नॉर्मल वह भी ई वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पी पॉइंट पर भी सर्कुलर इंड कैप के पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और पी के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया गया है गॉसियन सरफेस का डी एस, तो उस पर भी नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा, तो वह डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन है इसका डी एस का वह क्या है वर्टिकल है, तो इंड कैप क्या है, दोनों इंड कैप ए बी और सी डी का जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन में है, तो इसका जो सेक्शन होगा डी एस का पर जो नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा डी एस का सेक्शन भी वर्टिकल सेक्शन होगा, तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर होगा वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का डायरेक्शन दोनों इंड कैप्स के पॉइंट पी तथा क्यू के एक्रॉस जो स्मॉल एरिया सपोज किया गया है, तो उस पर जो एरिया वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन ई वेक्टर और डी एस वेक्टर माने ई वेक्टर के लॉन्ग होगा दोनों इंड कैप्स के पॉइंट पी एंड क्यू पर, तो थीटा इजकल टू ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर के बीच का एंगल दोनों सर्कुलर इंड कैप पर क्या हो जाएगा, इंड कैप के पी एंड क्यू पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल, माने चूंकि सेम डायरेक्शन होगा इसलिए एंगल दोनों के बीच में थीटा इजकल टू 0 होगा, लेकिन
इस जो सिलिंड्रिकल पार्ट है गॉसियन सरफेस का AD, इसके किसी भी सेक्शन पर, किसी भी जगह पर एक, अगर यहाँ पर एक स्मॉल एरिया, यहाँ पर DS ले लिया जाए, स्मॉल सरफेस एरिया इसका, स्मॉल एलिमेंट का मतलब गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया S है, तो उसका एक स्मॉल एरिया DS ले लिया जाए, तो यहाँ पर जो नॉर्मल, ये चूँकि ये जो प्लेन है आपका AD जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वह हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए इस पर जो नॉर्मल ड्रॉन किया जाएगा इस ये DS पर, स्मॉल एलिमेंटल एरिया है इस गॉसियन सरफेस का DS, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, अपवार्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन में, जो कि DS वेक्टर होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम जान रहे हैं कि प्लेन सीट ऑफ चार्ज के प्लेन सीट ऑफ चार्ज के सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वह डायरेक्शन क्या है, E वेक्टर है, जो पहले ही रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि गॉसियन सरफेस के एक्सिस के एलोंग है, तो E वेक्टर और DS वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस सिलिंड्रिकल पार्ट मतलब AD पार्ट, मतलब जो गॉसियन सरफेस का जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है AD, उसके कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी सेक्शन पर कोई स्मॉल एरिया अगर सपोज किया जाए, तो वह उस पर जो एरिया वेक्टर होगा वह नॉर्मल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। गॉसियन सरफेस ABCD जो कि इमेजनरी सिलेंडर है, उसके पार्ट सिलिंड्रिकल पोर्शन AD के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पार्ट पर E वेक्टर और DS वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन AB पर क्या होगा, AB सर्कुलर इंड है, फर्स्ट सर्कुलर इंड है गॉसियन सरफेस का, तो वहाँ पर पॉइंट P के राउंड जो पॉइंट P पर के राउंड जो गॉसियन सरफेस ये स्मॉल एलिमेंट सपोज किया गया है, स्मॉल एरिया DS, उस पर नॉर्मल DS वेक्टर E वेक्टर के लॉन्ग है, तो थीटा 0, तो फाई AB इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द इंटायर सरफेस S E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, तो E DS cos 0 डिग्री प्लस फाई AD की बात है, AD से होकर कितना फ्लक्स इमर्ज करेगा, कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो AD आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है, तो वहाँ पर पूरे सिलिंड्रिकल पार्ट पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, स्मॉल एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। सो E DS cos 90 हो जाएगा। AD से होकर जो फ्लक्स होगा, AD मतलब AD से जो फ्लक्स होगा वह कितना होगा, E DS cos 90 ओवर द इंटायर सरफेस प्लस फाई CD। अब CD सेकेंड सर्कुलर कैप है इस ये गॉसियन सरफेस का, जो कि इमेजनरी सिलेंडर है, तो यहाँ पर भी Q के राउंड, Q के राउंड इस CD पर पॉइंट मतलब CD सर्कुलर कैप है, इंड कैप, सर्कुलर इंड कैप है गॉसियन सरफेस का, तो वहाँ पर पॉइंट, उस पर पॉइंट Q है, तो Q के राउंड जो Q के राउंड स्मॉल एरिया एलिमेंट सपोज किया गया है DS, तो उस पर जो नॉर्मल होगा वही वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो CD से क्रॉस CD पॉइंट मतलब CD इंड कैप, सर्कुलर इंड कैप CD के पॉइंट Q पर भी DS वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो E वेक्टर तथा E वेक्टर एंड DS वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर डॉट DS वेक्टर ओवर द इंटायर सरफेस इज E वेक्टर मॉड ऑफ E वेक्टर मॉड ऑफ DS वेक्टर इंटू cos 0, तो E DS cos 0 डिग्री। अब cos 90 0 होगा, तो सेकेंड पार्ट जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पोर्शन है AD गॉसियन सरफेस का, तो और इमेजनरी सिलेंडर का, तो उससे कोई कंट्रीब्यूशन फ्लक्स का नहीं होगा, क्योंकि cos 90 0 हो गया। तो केवल गॉसियन सरफेस के दोनों सर्कुलर, बोथ सर्कुलर इंड कैप्स AB एंड CD से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज करेगा, तो वह कितना होगा, cos 0, मतलब ये फर्स्ट टर्म और फर्स्ट इंटीग्रल एंड थर्ड इंटीग्रल कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि cos सेकेंड इंटीग्रल 0 हो जाएगा। और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह समान है गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, तो E कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल। चूँकि कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाता है, तो इंटीग्रल E को बाहर कर दिया जाए फर्स्ट इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल ओवर DS ओवर द इंटायर सरफेसेस cos 0 1 हो गया, प्लस सेकेंड टर्म cos 90 E DS cos 90 ओवर द इंटायर इंटीग्रल ओवर इंटायर सरफेस cos 90 0, तो ये भी 0 हो गया। एंड थर्ड टर्म में E को बाहर कर लिया जाए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस से किसी भी पॉइंट पर, तो किसी भी पार्ट पर, तो E को इंटीग्रेशन से बाहर किया गया, तो कैपिटल E इज टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल, सो इंटीग्रल ओवर DS ओवर द इंटायर सरफेसेस। सो वी हैव इंटीग्रल DS इक्वल टू S, इंटीग्रल DS क्या है, एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है पूरे गॉसियन सरफेस का, तो जितने भी गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी स्मॉल एरियाज हैं, स्मॉल एलिमेंट्स हैं, सबके एरिया, सभी का सम जो होगा एरिया का, वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, फर्स्ट टर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जो फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू DS इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द इंटायर सरफेस DS इक्वल टू S हो गया। और फिर थर्ड टर्म में भी है
सेकेंड टर्म तो जीरो हो गया cos 90 के कारण, तो और थर्ड टर्म में भी इंटीग्रल ओवर डी एस ओवर द इंटायर सरफेस उसका वैल्यू ई एस, ई इंटू एस हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया एस हो जाएगा ऑफ द गॉसियन सरफेस। देयरफॉर फाई ई इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट इंटीग्रल में इंटीग्रल ओवर डी एस इक्वल टू एस टोटल सरफेस एरिया, अब प्लस सेकेंड टर्म तो जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो और प्लस ई इंटू थर्ड टर्म में भी इंटीग्रल ओवर डी एस ओवर द इंटायर सरफेस एस, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इंटीग्रल ओवर डी एस एस। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, फाई इक्वल टू ई एस ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस, दैट इज 2 ई इंटू एस, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 वाज, इक्वेशन नंबर 1 वाज वी हैव टेकन इंटीग्रेशन 1 एज सिग्मा चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, सिग्मा इक्वल टू q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, दिस वाज equation number 1, we have already taken it. So total electric flux through the Gaussian surface is 2 into phi is equal to 2 capital E into S, where S is the integral over ds is equal to S, total surface area of the Gaussian surface is S. Now this is, since we are discussing here the application of one of the applications of Gauss's theorem, so we have to apply गॉसेस थ्योरम। अभी तक हमने गॉसेस थ्योरम का यूज नहीं किया, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला से के हेल्प से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्टेन किया, लेकिन अब गॉसेस थ्योरम का हेल्प से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो यूजिंग गॉसेस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the Gaussian surface ABCD is phi e, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल phi e है, तो phi e इक्वल टू क्या होता है, गॉसियन सरफेस गॉसियन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम के हेल्प से किसी क्लोज सरफेस के अंदर किसी क्लोज सरफेस से इमर्ज करने वाला या क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर जितना चार्ज होता है उसका 1 बाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के से होकर के जो गॉसियन सरफेस पास कर रहा है जितने पोर्शन में, तो उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, सिग्मा इंटू एस फ्रॉम इक्वेशन 1, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द गॉसेस थ्योरम, एंड क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यूजिंग इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2 में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला के हेल्प से फाइंड किया था, ऑब्टेन किया था, तो फाई के जगह यहाँ गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन अब यूज हो गया है, तो फाई का वैल्यू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए, तो यूजिंग 3 इन इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी हैव फाई इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2 कैपिटल ई, RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज 2 कैपिटल ई इंटू एस, एस से एस कैंसिल हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट P और Q at distance small r from the infinite plane sheet of charge is capital E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, and this is the required expression, that is this is the expression for electric field intensity at a point due to uniformly charged infinite plane sheet of using Gauss's theorem. E capital E is equal to sigma upon 2 epsilon 0, and it is very interesting. This electric field intensity E at any point P or Q near the uniformly charged infinite plane sheet is independent of distance. हमने r distance सपोज किया, लेकिन r distance पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r से इंडिपेंडेंट है, स्मॉल r डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, यह डिपेंड किस पर कर रहा है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन शीट, सिग्मा पर डिपेंड कर रहा है, एंड एप्सिलॉन 0 तो है विच इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, तो एप्सिलॉन 0 का तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, नॉट ऑन द डिस्टेंस of the point P and Q under consideration we have taken at distance r from either sides of the or both sides of the infinite plane sheet of charge. So it is independent, electric field intensity due to an infinite plane sheet of charge is independent of the distance of the point P
under consideration, of any point P or Q under consideration. Now in vector form, this result can be expressed as, in vector form, we can write this expression of electric field intensity as, in vector form, write down, in vector form, equation 4, which is the expression for electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet. In vector form, equation 4 can be written as, E vector equals to, capital E vector equals to sigma upon 2 epsilon naught n cap, where n cap is the unit vector which is perpendicular to the plane of the infinite, uniformly charged infinite plane sheet and directed outward, in the outward direction, that is in the outward normal. N cap is the unit vector directed outward normal to the infinite plane sheet of charge. So it is the vector form of electric field. This is the vector form of electric field intensity. E vector is equal to sigma upon 2 epsilon naught n cap. अब इस एक्सप्रेशन के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है, यह वीडियो कंक्लूड होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।